Thank you very much, Madhav and Deepti, and thank you, Mr. Ashwini Vaishnav, a very busy minister, so many portfolios, running literally all the trains and the entire internet, our phones, everything. Mr. Ashwini आपके Vaishnav. फोन में नहीं हूं मैं. हाँ, वो वाला सवाल काफी दिनों से पेंडिंग है. लेकिन I want to begin with the fact that the theme of our Times Now Summit is India Unstoppable. How would you tell India today, all our viewers, our audiences here, on the 5 big reasons why you think India is unstoppable? Last 10 years of our country have been historic. If you look at any sector, I'll talk about 3 sectors. Railway, 40,000 kilometers electrified in 10 years. Compare that with the 20,000 kilometers done in 60 years before that. Right? 40,000 in 10 years versus 60,000 in 20,000 in 60 years. 31,000 kilometers of new railway tracks constructed just in a time frame of 10 years. 15 kilometers per day is the pace at which we are constructing. That was 4 kilometers per day. Absolutely, sector after sector, dedicated freight corridor. 2014, the number of kilometers that were commissioned and operational was 0, zilch. Today it is more than 2,700 kilometers, actually functional, 400 trains running on the system daily. Electronics manufacturing, practically negligible 10 years back, and today $110 billion worth electronics manufacturing. Apple alone is hiring more than 1 lakh persons are employed in the factories of Apple iPhone manufacturers. It's a absolute fundamental change, semiconductors, which the country dreamt of since 1962. Now we have 4 units where the construction is going on. Sector after sector, if you look at it, the work which has happened, the momentum which is there in our economy, it's phenomenal. I can say with a 95% confidence interval that in the coming 10 years, the country will grow at a consistent growth rate of 6 to 8% real growth in the coming 10 years. So definitely that means it's unstoppable. It's unstoppable because we have a great captain, we have a great leader who is thinking of 25 years ahead, who has a 10-year legacy in central government and a total of 27 years of total legacy in governance and a 25-year ahead action plan. That's our Prime Minister Modi ji, and that's why India is unstoppable. Mr. Ashwini Vaishnav, you are the poster boy, literally, of the semiconductor masterclass that you've held. And semiconductors can be a game changer as far as India and its economic position, as well as its position of attracting investments in the country is concerned. Can we be an alternative to China? Or once again, the question many are asking, this time around, can we capitalize on the opportunity? Absolutely yes. Emphatically yes. This will be a reality. In the coming 5 years, Bharat will be among the top 5 semiconductor destinations of the world. I can say that with very high level of confidence. See, when we started the semiconductor program, the first thing that our Prime Minister said was, look at the entire ecosystem. Don't just look at setting up the plant, look at setting up the entire ecosystem. Second thing, he mandated on us, look at minimum 10 years program and ideally a 20 years program. Don't look at a 1 year, 2 year, or this scheme, this financial year, that financial year. We stuck to those 2 principles. We practically, I must have personally met about 45 company CEOs and CTOs. We asked them every detail that is needed for setting up this new industry. And we did a lot of homework, practically. So I remember the first few meetings with the CTOs. They would say that, no, aapke yahan ye nahi hai, you don't have this, you don't have that.
And we worked meticulously on every possible item. There are 250 odd chemicals and gases which go in semiconductor manufacturing. And some of the names are tongue twisters, very difficult to even pronounce the names. So it's very, very complex industry, but the hard work is paid off. We have 4 units where the construction work is going on. And the construction work was also done in record time. Micron plant, June 23, the agreement was done. September 23, within 90 days, construction started. The 2 plants of Tata and the plant of CG Power, again, within 18 days of approval, construction actually started on the field. It's a pace which is what making it unstoppable India, right? Well, Mr. Ashwini Vaishnav, you've been a career bureaucrat, went to the private sector, became an entrepreneur, and then made your foray into politics. The question I want to ask you, पहले कहा जाता था कि governments are, laid back working, things happen at their own pace, file pushing is the way governments run. You've been a part of the Modi Sarkar. I want to ask you, what would you say and how would you describe Modi's cabinet and Modi's government? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन, देश के लिए जो संकल्प, द वे ही इज थिंकिंग अबाउट द कंट्री, इट्स अ फिनोमिनल थिंग. इट्स something which I don't think any other country is as blessed as we are. I don't think any other country in the world has a leader who is thinking of 25 years ahead, who's taking inputs from more than 15 lakh people to create a vision for 2047, who is actually implementing, breaking down that vision into implementable portions, executable portions, then giving those targets to the ministers. And also taking the private sector, the stakeholders, the civil society, everybody together to make sure that our vision, the way we would like to see our country in 2047, that is realized. Where would you find this kind of leadership? And this leader works almost 20 out of 24 hours in a day. No Saturday, no Sunday for him. Absolutely no holiday for him. I don't think, at least in whatever interaction I've had with Honorable Prime Minister, I've never seen him taking even 1 hour holiday, forget 1 day holiday or few days. I think there are other leaders who are frequently visiting all kinds of places and being seen with. This is a person who is committed to the country, who's just thinking of the country 24 hours. Rashtra Pratham, Sadaiv Pratham. That's the only thing he thinks. And that's what he's working on. And we are all very fortunate that we are able to contribute in our own way. जैसे भगवान राम जब अपना सेतु बना रहे थे, तो गिलहरी का भी एक रोल था. तो हम जैसे गिलहरी के रोल वालों को भी आज सौभाग्य है कि हम उसमें उस बड़ी जर्नी में हिस्सा बन रहे हैं. बड़ी पावरफुल गिलहरी है, रेलवेज भी चलाती है, टेलीकॉम भी चलाती है, आईटी भी चलाती है, बड़ी पावरफुल, बड़ी कर्मठ गिलहरी है ये तो लेकिन सवाल ये भी है, आपने कहा कुछ लोग हॉलीडेज लेते रहते हैं, कहीं जाते हैं. Who are you referring to? आप सब समझ गए, समझने वाले समझ गए. नहीं, आप अगर बता देते तो जनता अच्छी तरीके से समझ जाती. बहुत सारे लोग हैं. देखिए, विपक्ष में हम बांध के रखा कि कोई प्रोग्रेस कर ना पाए, जो प्रोग्रेस कर रहा उसको नीचे दबाओ. मतलब सारी दुनिया सोचती थी कि इस देश का इतना पोटेंशियल है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने 4 डेकेड्स तक पूरे लॉस्ट डेकेड्स रखे.
बाद में परिवर्तन आया, थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म्स हुए, फिर श्रद्धेय अटल जी के टाइम में और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, फिर 10 साल का पीरियड आया जिसमें जो कुछ किया कराया था वो सब भी एक प्रैक्टिकली एक फिर एक लॉस्ट डिकेड किया 2004 से 2014। 2004 में जब अटल जी ने जिम्मेदारी सौंपी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस की सरकार को, इतनी हेल्दी, इतनी रोबस्ट इकोनॉमी थी। मैं एक छोटा सा क्विज आपके सामने रखना चाहूंगा। 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी ने व्हेन ही हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे भारत की रैंकिंग दुनिया में कितने पे थी? गैस करो ना। 11th। किसने बोला? भाई इनके लिए जोर से ताली बजाओ यार। 11th रैंक पे थी। अब मैं पूछता हूं 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की, कितने पे थी रैंकिंग? 11। सबके लिए ताली बजाओ, सब सही बोल रहे हैं। तो 11वें रैंक पे 2004 में, 11वें रैंक पे 2014। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब पूरा 10 साल वेस्ट हुआ ना वेस्ट। और मोदी जी ने 2014 में 11वें रैंक पे जिम्मेदारी ली। आज कितना है? 5वें नंबर पे ऑलरेडी हम पहुंच गए। 5वें नंबर पे पहुंच गए और ये मोदी की गारंटी है कि 2027-2028 तक हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगी। आप देखो जितना काम कर पा रहे हैं, 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में। जब 5वीं आर्थिक ताकत इतना कुछ कर सकती है, आप इमेजिन करो जब तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होगी, कितनी देश में क्षमता होगी जो काम कर सके और देश को एक ऐसे फाउंडेशन दे सके जो 2047 और 2047 के बियॉन्ड भी देश के काम आए। ये है मोदी जी का प्रभाव। So let me ask you, today the Prime Minister has also tweeted, some eminent lawyers have also written a letter. The question that is being asked, and the Prime Minister has tweeted about the pressure that is being put by the Congress party on the judiciary. I want to get a perspective on what is the Prime Minister hinting at, and where do you think the pressure is being put on the judiciary? Is it just because even the Congress party has come out and said that after the electoral bonds issue, which has gone against your government, this is a deliberate psychological warfare that has been launched on the judiciary? तो ये नया है क्या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस का पूरा इतिहास इस चीज से भरा हुआ है। They killed the constitution, they killed so many institutions, they put so much pressure on the judiciary. I'm sure you would all remember, Congress used to say Congress needs a committed judiciary. Committed judiciary का क्या मतलब है भाई? अब ये बताओ, कांग्रेस का पीरियड था जिस पीरियड में जुडिशरी में जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए था उसको नहीं बना के किसी और को बनाया। व्हाई? दैट्स व्हाट कांग्रेस की जीन्स ऐसी है, कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। कांग्रेस में ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंडिपेंडेंस नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अभी मिस नीरजा चौधरी ने अभी एक बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर्स पे, उस बुक को आप पढ़ो। पहले ही चैप्टर में इतनी स्ट्रॉन्ग सामने आता है कि किस तरह से कांग्रेस के गांधी परिवार ने क्लियर डिस्कशंस होते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सबवर्ट किया जाए। आई मीन दैट्स द वे कांग्रेस माइंडसेट इज। तो आज वो फिर प्रेशर डाल रहे हैं, ये उनका काम है, ये उनका नेचर है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक चीज का, ये देश, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे देश में आज जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है, आज जो एक अंदर से आत्मविश्वास है, इस देश को कांग्रेस की कोई भी गलत भावना इस देश को हिला नहीं सकती, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकती। इस देश के इंस्टीट्यूशंस को कांग्रेस में आज इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी छेड़खानी कर सके।
But the charge of the Congress party is that it is your government that is subverting institutions, especially the misuse of agencies against opposition leaders. Especially in the recent times, there has been Hemant Soren, a sitting chief minister who's had to resign, has been put behind bars. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, sitting Chief Minister, has been put behind bars, and today he's argued his own case, saying this is the BJP's conspiracy to crush the Aam Aadmi Party. जहां पे मनी ट्रेल वेल स्टैब्लिश्ड हो, एक कांग्रेस के एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपए कैश मिलता है, 350 करोड़ रुपए कैश मिलता है, और वो कांग्रेस कहती है कि एजेंसीज का मिसयूज करो। अरे भाई, इतनी हिपोक्रेसी पब्लिक लाइफ में, ये कांग्रेस की ही बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। एंड अरविंद केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं 1 रुपया भी नहीं मिला उनके घर से, मनीष सिसोदिया के घर से, संजय सिंह के घर से, फिर भी अरेस्ट कर लिया। कोर्ट्स ने एक के बाद एक, जब मिस्टर संजय सिंह और मिस्टर मनीष सिसोदिया के हियरिंग्स हो रही थी, क्यों उनको पीछे रखा है? Why the courts have not intervened there? They have not intervened because they must have seen something which, obviously it's a judicial process going on. We shouldn't be commenting on that. But today we have a free and fair judiciary. We have absolutely robust judiciary. So let the judiciary decide. Let Kejriwal ji also put his point of view in front of the judiciary. Let the prosecution agencies, let them put their point of view. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। Mr. Vaishnav, the question is that your government, in terms of governance, in terms of the promises that they had made, claims that it has done very well. Economic indices, of course, support the theory. राम मंदिर का प्रॉमिस था, आपने पूरा किया। आर्टिकल 370 था, आपने पूरा किया। अगर आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तो फिर एजेंसीज की जरूरत क्यों पड़ती है इलेक्शन के समय? और दूसरी बात, इतने सारे इंपोर्टेड लीडर्स दूसरी पार्टियों से लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब लिकर स्कैम में इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, कौन सा इलेक्शन था? देखो आप नविका जी, किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखो। जब मिस्टर हेमंत सोरेन के करप्शन के केसेस चालू हुए, कौन सा इलेक्शन था? जब मिस्टर साहू के पकड़े गए 350 करोड़, कौन सा इलेक्शन था? जब बंगाल में 50 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया गरीब बच्चों के, जो कि एग्जाम देके अपने सरकारी नौकरी को ढूंढ रहे थे, तब उनसे पैसे लेके एक टीएमसी का मंत्री 50 करोड़ रुपए कैश पे बैठा था, तब कौन सा इलेक्शन था? इलेक्शन के साथ कैसे जोड़ते हो भाई आप? कोई जोड़ने की बात नहीं है। ये तो एजेंसीज अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है, लेट देम डू। और अगर ये कहते हैं कि करप्शन को बनाए रखो, ये तो नहीं चलने देंगे। मोदी जी ने क्लियर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का, एंड ही हैज टेकन अप दिस मैटर इन अ वेरी स्ट्रांग वे। करप्शन के विरुद्ध लड़ाई के लिए हमेशा बाहर आए और मजबूत एक्शन लिया, लड़ेंगे। Also the question will be, why is absolutely no action being taken against those who either come into your party or are part of your party and have cases from the past? कोई ऐसी बात नहीं है। जुडिशरी, एजेंसी सब अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है। But there are people who you have accused in the past who are now part of your political party, and therefore आप दूसरों को hypocritical कहते हैं, थोड़ा अपनी पार्टी पर भी देख लीजिए। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको एकदम क्लियर कहता हूं कि कहीं पर भी एजेंसीज काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री है और कर रही है फ्रीली, कहीं इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। So I want to ask you, भारत जोड़ो यात्रा, do you think it has, and this is the 2.0 that I'm talking about. पहली यात्रा जब हुई राहुल गांधी की, तो आप कर्नाटक, तेलंगाना हार गए। दूसरी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसके बाद क्या इम्पैक्ट रहेगा? हम राजस्थान भी जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते, मध्य प्रदेश भी जीते। हमने तेलंगाना में वोट शेयर डबल डिजिट से ज्यादा में लेके आए। कर्नाटक में वोट शेयर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। आप हम लोगों को एक वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट। कॉजेलिटी और कोरिलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कॉज एंड इफेक्ट देखो, आप अननेसेसरी चीजों को कोरिलेट मत करो।
बहुत सिंपल है। आज देश में लोगों ने अपना क्लियरली अपना मन बना लिया है। आप छोटे से छोटे गांव में जाके देखो। मैंने काम किया वेस्टर्न यूपी में, 3 लोकसभा में काम किया, और अभी मध्य प्रदेश में काम किया, और उड़ीसा में जमीन में मतलब जमीन के साथ जुड़ के कुछ काम किया। बहुत ज्यादा मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इतना आपको नहीं कह सकता, लेकिन जितना देखा है एक चीज स्पष्ट सब तरफ से आ रही है। एवरीवेयर, वेरेवर यू गो, वन थिंग विच पीपल आर सेइंग वेरी एम्फेटिकली, 50-60 वर्षों में जो चीज उन्होंने सोचा, जनता ने, जन जन ने सोचा था, those things are now actually delivered in every household in the country, and that is without any discrimination. अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में था। गरीब से गरीब घर में जाके आप बात करो, आदिवासी घरों में जाओ, आप वहां पे बात करो लोगों से, लोग स्पष्ट कहते हैं the kind of facilities which have come in the last 10 years, unthinkable. एक माँ बोली कि हम सोचते थे कि गैस का चूल्हा मतलब भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में जो बड़े संभ्रांत परिवारों में गैस का चूल्हा होता होगा, लेकिन आज मोदी जी ने हमारे घर तक लाके दिया है। नल से जल, समथिंग, थिंग्स विच वी इन सिटीज वुड अज्यूम, टेक फॉर ग्रांटेड, उसका कितना बड़ा महत्व है गांव में। आप गांव में जाके पूछो। आई विल रिक्वेस्ट टाइम्स नाउ से आप अपना एक डेलीगेशन भेजिए, एक पूरी टीम भेजिए, गांव में एक्चुअल में किस तरह से काम हुआ है उसको देखे। मतलब गांव के लोग आश्चर्य करते हैं कि नल से जल कोई सोच भी नहीं सकता था, वो चीज आज उनके घरों तक पहुंच रही है। दीज आर थिंग्स विच आर रियल, नविका जी, दीज आर थिंग्स विच आर देयर ऑन द ग्राउंड। केवल टहलने से लोगों का आप मन बहला नहीं सकते। आपको लोगों के लिए हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, कड़े संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, एग्जीक्यूशन के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके देश का विश्वास आता है। वो विश्वास आज मोदी जी पे, वो विश्वास आज मोदी जी पे 100% है, और इसीलिए इतने एकदम क्लैरिटी के साथ हमारे काम के 10 साल के मोदी जी के काम के बेसिस पे आज हम वोट मांगने जा रहे हैं पब्लिक के सामने। Mr. Vaishnav, you are somebody who's got bipartisan support in your election to the Rajya Sabha. The BJD supported you, the BJP of course supported you. वैष्णव जी ने क्या जादू किया? देखिए, बहुत सारी चीजें होती है जो पार्टी अपने अपने लेवल पे फैसले लेती है। मैं सार्वजनिक जीवन में जो भी मेरे सार्वजनिक जीवन के फैसले होते हैं वो पार्टी लेती है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी तय करती है वो मैं कर लेता हूं। और बीजेडी के साथ अलायंस की बात, क्योंकि आप ओडिशा से राज्यसभा मेंबर हैं, क्योंकि आप ओडिशा में काम कर चुके हैं, आप ओडिशा काडर के ऑफिसर भी रह चुके हैं, आई वांट टू आस्क यू, there was a conversation of an alliance between the BJP and the BJD and then it fell through. Why? देखो, मुझे अनुभव कम है, इसलिए मैं शायद आई वुडंट लाइक टू मेक अ वेरी big statement here, but conceptually when a ruling party and the principal opposition party, conceptually alliance between these two combinations is very difficult, looks very improbable. So I think we'll contest all the seats in we will contest all the seats in both the Lok Sabha as well as the assembly, and we will come back, we'll come out, we'll emerge as a very with major gains. So you can only take members of parliament, leaders from that political party, but you can't have the party as an alliance partner. वही मैंने कहा ना आपको, alliance between ruling party and the principal opposition party in a state is something which is very improbable. पर भृतुहरि महताब बीजेडी के साथ थे इतने साल, उन्हें आप ले सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार, एक कमिटमेंट, एक आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। ये एक पार्टी है जिस पार्टी में हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के प्रिंसिपल को मान के चले। ये एक पार्टी है जिसने आज नहीं, अपनी शुरुआत से 1952 में जनसंघ के समय से अंत्योदय को अपना मूल मंत्र माना है। वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज अ मेजर गोल। इस फिलॉसफी में जो भी विश्वास करे उन सबका स्वागत है।
जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करे वो सबका स्वागत है। मैं तो कहता हूं आप भी ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी पार्टी है। मैं जहां हूं खुश हूं, एंड आई वुड इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन टाइम्स नाउ, बट द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज, वुड यू रेकमेंड करियर पॉलिटिक्स टू प्रोफेशनल्स? आप एक प्रोफेशनल थे, अब पॉलिटिक्स में हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का मौका देता है where you can give back to the society. See, कोई भी व्यक्ति, we are all creatures of our society. Whatever we are because what our country has given us, what our society has given us, what our educational institutions have given us. So we must give back to the society, and political life gives a very large canvas where you can do a very big change, very fundamental transformative change in people's lives. So I would actually very strongly recommend that all the professionals must give us, even if they give a small fraction of the time, they must give a small fraction of the time for the society and do something very regularly, whether in terms of thinking, whether in terms of executing, whether in terms of connecting with other people, whether in terms of actually collecting the feedback from the ground. Whatever you want to do, please do, but always think of contributing to the society. But many people, many professionals feel scared that if they don't have antecedents in politics, survival could be difficult because politics is a difficult stream to be in. How has it been for you? Is there any special skill set that is required to become a politician? देखिए, मोदी जी बहुत क्लियर एक चीज समझाते हैं हम लोगों को, आप कभी भी कुछ बनने का मत सोचो, कुछ करने का सोचो. He is very clear in his mind when he tells us, हमेशा कुछ जो आप करना चाहते हो उसको करने का सोचो. ये मत सोचो कि आप ये बनो वो बनो. If we have that mindset, if we think of our life in that way, then everything becomes very straightforward. Is politics straightforward from the inside? लाइफ में क्या चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है? हर चीज में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हर चीज में डिफिकल्टीज होती है. डिफिकल्टी सामने आए, उस डिफिकल्टी को फेस करके उसमें से सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना चाहिए. Is there any commonality between professionalism in the private sector and the way governments run? अगर मन में सेवा का भाव हो, if we think, okay, we have to contribute to the society, we have to contribute to nation building, I think whichever profession we are, it's one and the same. Whether in a media house, if you can think of how do you contribute to building the country, building the nation, I think that's exactly the same thing that we are doing in the government. What's the targets? When you have one-on-one meetings with the Prime Minister, or when you meet in a group of ministers meeting the Prime Minister, is it always work-oriented, target-oriented, also some political objectives that are there? Or are there any sessions that are had with the Prime Minister where you talk about how to change mindsets, how to take the country forward? Do these discussions take place? देखिए, once we are working in a team, and the way our Prime Minister is, he goes in good details. He's a very detail-oriented person. And in my professional as well as personal life, I've not seen a person who is as intent listener as our Prime Minister Modi ji is. He can take a very, very complex subject and very intently he'll get engrossed in that subject and deeply think about it and come up with things that we would have not even thought of. I have multiple examples. For example, in semiconductors, when we went to him for the structure of the India Semiconductor Mission, we sought a meeting of about 45 minutes. He actually spent almost 3 hours with us, going in every detail, and at the end of the meeting he said, देखो, देश ने बहुत बार ये प्रयास किया है और आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में
सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। हर चीज को ढंग से सोच के 360 डिग्री सोच के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का स्ट्रक्चर बनाओ जिससे कि सक्सेस मिले ही मिले। इतना डिटेल में जाते हैं। स्टेशंस की बात थी, स्टेशंस की बात में 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में पीएम साहब ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। देन ही कॉल्स मी अप लेट इन द नाइट और बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा जो डिजाइन था ये डिजाइन आज के लिए ठीक है, 50 साल आगे की सोचो। दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज। He goes deep in details. He's a very intent listener. He'll always encourage you to think long term. He'll always ask you to check whether all the stakeholders have been taken on board or not. He's a person who will say that इसमें टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना है और एक साधारण से साधारण नागरिक का भी ध्यान रखना है। इसमें फाइनेंसिंग का भी ध्यान रखना है, देश के ऊपर या इसके यूजर्स के ऊपर कोई बोझ न पड़े उसका भी ध्यान रखना है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ थिंकिंग। इट्स अ रियल प्लेजर वर्किंग विद हिम। आई मस्ट से, एटलीस्ट माय लिटिल एक्सपीरियंस, इट्स अ रियल प्लेजर वर्किंग विद हिम। So, as a minister in the Modi cabinet, are you confident of the target that has been set? अब की बार 400 पार। बिल्कुल, अब की बार 400 पार होना ही होना है, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द वर्क विच हैज बीन डन। देखो, 10 साल की लेगेसी देश के सामने है, 10 साल की लेगेसी पूरे देश के सामने। इससे पहले गुजरात की लेगेसी ऑलरेडी थी। गुजरात प्लस देश के प्रति जो मोदी जी ने जो काम किया है वो देश के सामने है आज। और अगले 25 साल का क्लियर विजन, अगले 25 साल के लिए क्लियर रोड मैप, वो क्लियरली सामने। आप मुझे बताओ, आज अगर विश्व के टॉप 10 इकोनॉमीज को अगर आप सामने लेके देखो, लिस्ट बनाओ, क्या कोई एक भी देश है जो आगे 25 साल की सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। कोई एक लीडर है जो इतना फॉरवर्ड थिंकिंग हो? कोई नहीं है। ये आज देश का जन जन पहचानता है। जनता में एक ऐसा स्ट्रांग विश्वास है। मैं आपको बताऊं, सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव, माइनॉरिटी पॉपुलेशन वहां पे मैक्सिमम है, क्लोज टू 75% पॉपुलेशन माइनॉरिटी है। उस गांव में जब मैंने जाके अपने साथियों से मैंने पूछा, गांव के जो निवासी थे उनसे सबसे पूछा कि भाई आपको घर मिला? हाँ मिला। क्या आपके प्रति कोई भेदभाव हुआ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। वहां मैंने माइनॉरिटी परिवार के एक माँ से पूछा, आपको गैस का सिलेंडर मिला? हाँ मिला। क्या कोई भेदभाव हुआ? नहीं, भेदभाव नहीं हुआ। ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, इसको वो पालन भी करते हैं। इसीलिए आज 140 करोड़ देशवासियों के मन में एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है कि केवल मोदी जी ही उनके बारे में सोचते हैं, केवल मोदी जी ही देश को एक जो भारत का स्वप्न है, उस स्वप्न को सपना सच करने में एक ही व्यक्ति है जो इसके लिए सक्षम है। इसीलिए बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि अब की बार 400 पार है। लेकिन साउथ ऑफ इंडिया, इट इज द सेम कंट्री, बट तमिलनाडु, you've never won a seat. Kerala, you've never won a seat. Telangana, you have a very little presence. Karnataka, where you had a larger presence, you've lost the state government. Andhra Pradesh, you don't have a seat. आप 2019 से पहले की डिस्कशंस देखो, चुनाव से पहले के। बंगाल में यू हैवंट वन, ये लो साहब 18 सीटें। उड़ीसा में कभी आपने 1 सीट जीती, 2 सीट जीती, ये लो 8 सीटें। देखो नविका जी, जब देश में विश्वास आता है, जब जन जन में विश्वास आता है, उसका रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट्स में एकदम स्पष्ट तौर पे परिणत होता है। आप सबके सब जितने मीडिया चैनल्स थे, बताओ मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में आप बताओ, आप क्या बोलते थे? रिजल्ट आपके सामने। देखो ऐसा नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, और जनता का जो विश्वास है ना, वो विश्वास कड़ी मेहनत से जीता जाता है। आपने ईवीएम हैक कर लिया। भाई यही ऑपोजिशन 2004 से 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या ईवीएम से नहीं होता था चुनाव? वही ईवीएम है जो तब थी। और अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं समझता हूं ईवीएम क्या होती है। वही ईवीएम है भाई। देखो, जब एक वो हिंदी में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंदा नोचे, खंबा नोचे, तो ठीक है, उन लोग जब वो मेहनत नहीं करना चाहते तो किसी न किसी को दोष तो देंगे ही देंगे। आपको लगता है वो मेहनत नहीं करते?
इतनी लंबी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से भाई लेकर, गाड़ी में बैठ के क्या यात्रा यार, आप भी क्या बात करते हो। लेकिन महाराष्ट्र में जब क्लोजिंग हुई थी तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म क्या पे थे। नविका जी, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस साथ है क्या? क्या अधीर दादा बोल रहे हैं और क्या राहुल जी उसका जवाब दे रहे हैं? क्या ममता दीदी बोल रही है और क्या उसमें कम्युनिस्ट पार्टी? कौन है भाई साथ? अभी आप देखो महाराष्ट्र में हर कोई अपने अपने हिसाब से लिस्टें निकाल रहा है। ये घमंडिया गठबंधन एक फिक्शन है। इस फिक्शन को आप कितने दिन चला पाओगे भाई? हवा में बना हुआ बुलबुला कितने टाइम चलेगा? Are you underestimating the opposition? I am not underestimating anybody. I am looking at the confidence, I am looking at the trust that people have in Narendra Modi ji, and that is the only and only factor which will give us the results, which will give the country the results that the country is looking for. So then, what next for Ashwini Vaishnav? Are you getting ready for the next stint in the Modi देखिए, cabinet? ये सब नहीं सोचते। हमें आज हमारे सामने जो काम पार्टी ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस पे 100% फोकस करना चाहिए। 100% डेडिकेशन के साथ उस काम को करते जाना चाहिए। Really? सब लोग, Absolutely. आप वैसे तो 2047 की सोच 2047 देश के लिए सोच रहे हैं। इस देश को बनाने में कई लोगों का सहयोग रहेगा। आपका भी सहयोग रहेगा, सामने बैठे हैं उनका भी सहयोग रहेगा, जो टीवी पे सुन रहे हैं उनका भी सहयोग रहेगा, जो नौजवान आज कॉलेज में है उनका भी सहयोग रहेगा, सबका सहयोग रहेगा। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार है। How will you describe Narendra Modi in 5 words? देखिए, मोदी जी देश के बारे में इतना स्पष्ट तौर पे सोचते हैं। देश को विकसित देश बनाने का उन्होंने स्पष्ट एक संकल्प लिया है और उस संकल्प को वो सिद्ध करके रहेंगे। राहुल गांधी? 5 क्या, एक शब्द ही बहुत है उनके लिए। अच्छा, एक शब्द क्या बताएंगे? छोड़ो, रहने दो। दुनिया ही उनको सीरियसली नहीं लेती भाई, आप क्यों सीरियसली ले रहे हो? आपकी ऑपोजिशन है, आपने कहा हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। भाई उनको अंडर एस्टिमेट कोई नहीं करता है, हर कोई समझता है वो क्या है। आप कुछ कुछ पॉलिटिक्स सीख गए। नहीं, मैं नहीं सीखा अभी। अभी बहुत काम बाकी है। Well, Ashwini Vaishnav, clearly always a pleasure speaking with you, and the way you take questions clearly, we cannot call you a new entrant to the field of politics. Ashwini Vaishnav has come a long way. Thank you very much for joining me here on this very great platform of Times Now Summit, and we hope we'll keep welcoming you back every time. Thank you very much, Navika ji. Thank you very much, Times Now, for having me here. Thank you, and ladies and gentlemen, presenting to you Ashwini Vaishnav, Union Minister. Big round of applause.